Hello children, welcome back to your own math stimulus. Today in this module we will learn Rolle's theorem. Mean value theorems are applications of derivative which are further categorized in two theorems, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. And in this module particularly we are going to learn Rolle's theorem. What is the statement of Rolle's theorem? Rolle's theorem states, let f be a real valued function defined on a closed interval ab such that f is defined from closed interval ab to real number r such that it is continuous in closed interval, it is differentiable in open interval, and f of a is equal to f of b. Then there exists at least one real number c belonging to open interval ab such that f prime c is equal to 0. जो कुछ मैंने कहा थोड़ा सा लग रहा है बड़ा डिफिकल्ट है. लेट अस कंसिडर इट मोर क्लियर विद इट्स ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज इट्स ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन? लेट्स सी. फंक्शन कैसा है हमारे पास? लेट f is defined from closed interval ab to r and it satisfies three conditions of Rolle's theorem. It is continuous in closed interval ab, implies let on x-axis and y-axis we have a and b be the 2 point and our function is continuous. You can see it is continuous from a to b in closed interval. From a to b it is continuous. What is second condition? It is differentiable in open interval ab. Why open interval? Why not closed interval? Children, differentiability means this curve has unique tangent at each and every point from between a to b but not at a and b, because you can see at a if it would be differentiable, that means it have unique tangent, but at a we can draw multiple tangents. So it does not have a unique tangent at a and it does not have unique tangent at b. We can have multiple tangents, so we will say differentiable in open interval. And third condition, f of a is equal to f of b. What does this mean? This means ordinate. This is f of a, value of function at a, f of a, value of function at b is f of b. Third, this height f of a is equal to f of b. If a function satisfies these three conditions, continuity, it is continuous from a to b, it is differentiable in open interval, and f of a is equal to f of b, then there exists at least one real number c. One real number c between a and b such that f prime c is 0. What is the meaning of f prime c 0? F prime c gives you tangent. F prime c dy by dx, it is tangent, and f prime c 0 implies tangent. This tangent is parallel to x-axis. So now you are very much clear what is Rolle's theorem. Function defined है closed interval a b से r के अंदर real number line पर, it is continuous in closed interval, differentiable in open interval, height, value of function at a and b are equal, then there exists at least one. But Rolle's theorem ensures कम से कम एक पॉइंट c जरूर एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए बी जिसपे आपका टेंजेंट पैरेलल होगा x एक्सिस के. f प्राइम c 0 का मतलब है टेंजेंट. This line is showing you tangent. This line is tangent at point C.
this is parallel to x-axis. Let's see one more curve. I am considering this curve. Again, my curve is defined from A to B. This is my initial point. This is my final point. A to B में you can see function is continuous. It is differentiable in AB. You can see at each and every point we can find unique tangent on the curve in open interval. At A again end point पर we can have multiple tangents. तो हमारे पास end points पर differentiable नहीं है. And f of A is equal to f of B. This ordinate value is equal, f of A is equal to f of B. Then there exists at least one real number. But you can see here we have 1, 2 and 3 points, C point, D point and E point, at which tangent is parallel to your x-axis. So it may happen कि आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट एग्जिस्ट करते हो बिटवीन पॉइंट क्लोज इंटरवल पॉइंट A and B जहाँ आपका टेंजेंट पैरेलल हो, बट Rolle's theorem ensures at least one point. कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा भी पॉसिबल है. So now I am sure you are very much clear what Rolle's theorem states. Rolle's theorem के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, ऑर्डिनेट हाइट एट A and B इक्वल होगी, तब कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट ऐसा करेगा जहां आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. Now we are coming on algebraic interpretation. What is the meaning of algebraic interpretation? Algebraic interpretation, what it says? Between any two roots of polynomial fx. Roots of polynomial क्या होते हैं बेटा? Value of x at which fx is 0. So between any two roots of polynomial fx, there is always a root of its derivative f prime x. What does this mean? See a curve. देखो, this is a curve before you again. A and B के बीच अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास कितने रूट्स हैं? तो this point is a root 1, 2, 3 and 4. जहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 है. Between two roots of a polynomial, there is always a root of its derivative. इन दो के बीच आपके पास यहाँ इस पॉइंट पर देखो, this is derivative of f prime x, जहाँ f prime x 0 है आपका. Between these two points, this point and this point, derivative is 0. Between these two roots of fx, derivative f prime x is 0 here. So between any two roots of a polynomial fx, there is always a root of its derivative f prime x. This is algebraic interpretation of Rolle's theorem. Now बेटा हमने लर्न कर लिया what is the statement of Rolle's theorem, what is its geometrical interpretation and algebraic interpretation. अब हमने ये कंसेप्ट अपना प्रॉब्लम सम्स में अप्लाई करना है. तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है या नहीं ओपन इंटरवल में. इसके लिए आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपने कंटिन्यूटी के अंदर किए हैं, यू रिमेंबर, ये सारे आपने कंटिन्यूटी के अंदर आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो मैं उन्हें सिर्फ आपको रिकॉल करा रही हूँ. Here are few functions which are continuous and differentiable everywhere. What are these? Number one is constant function, polynomial function, exponential function, sine and cosine functions. These are the functions which are continuous and differentiable everywhere. ये आपके हर जगह पर continuous and differentiable हैं. And there are the few functions which are continuous and differentiable over their respective domains. Respective domains means tan, cot, sec, cosec function. ये respective domains में continuous है. tan pi by 2, 3 pi by 2, 5 by 5, pi by 2 इस पर not defined है. cot pi के multiples में not defined है. And so on, sec and cosec. Inverse trigonometric function अपनी respective domain में continuous है. लॉगरिथमिक फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज रिजल्ट. अगर कांस्टेंट फंक्शन आता है आप आंख बंद कर कहो कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर,
एक्सपोनेंशियल है आपका तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एंड सो ऑन. एंड देयर आर फ्यू मोर रिजल्ट्स. सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट and quotient and composition of continuous function is continuous. अगर आप दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करें या डिफरेंस करें, उनकी मल्टीप्लाई करें, उन्हें डिवाइड करें या उनको कंपोजिशन फंक्शन बनाएं, वो भी कंटिन्यूस होगी. एंड सिमिलरली सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट एंड कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वो भी आपका डिफरेंशिएबल होगा. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये इस पॉइंट को देखो. एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीजें पढ़ी हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस. दैट इज इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट देन इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. मीन्स कंटिन्यूटी implies differentiability. It is not always true, but अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस है, तभी वो डिफरेंशिएबल है. लास्ट पॉइंट इज mod x is not differentiable at x is equal to 0. देखो mod का फंक्शन हमारा हमेशा मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, बट ये हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, जिस पॉइंट पे शार्प कर्व बनाता है, शार्प बेंडिंग होती है इसकी. अब इसका आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0. ये 0 पे v बनाएगा, v शेप्ड लेगा, तो v शेप पे डिफरेंशिएबल नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0. यदि मैं यहाँ फंक्शन ले लूँ mod x माइनस 1 अगर मेरे पास हो, तो mod x माइनस 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अगर मैं ले लूँ mod x प्लस 1 तो वो फंक्शन आपका -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो mod फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट क्रिटिकल पॉइंट्स. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है जब आप रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो उसमें आपको डायरेक्टली देखने में ये हेल्प करेंगी इनिशियली कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या नहीं, या फंक्शन में आपका ऑर्डिनेट की वैल्यू चेक करने के लिए आप डायरेक्ट वो पॉइंट पुट करेंगे फंक्शन में, f of a is equal to f of b. Let's see how we'll proceed. अभी हम यहाँ किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं. बेटा यहाँ देखेंगे 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. नंबर 1, विल चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम. हमारे पास फंक्शन होगा, विल सी कि क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है. मीन्स यू विल चेक 3 कंडीशंस, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, एंड f of a, f of b है या नहीं है, टू चेक द एप्लीकेबिलिटी. नेक्स्ट टाइप आपकी होगी वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम. आप वेरीफाई करेंगे. वेरिफिकेशन में आप वो पॉइंट सी भी फाइंड करेंगे जिस पर आपका f प्राइम सी 0 होगा. 3 कंडीशन पहले चेक करेंगे, अगर वो एप्लीकेबल है देन यू विल फाइंड अ पॉइंट सी एट विच f प्राइम सी इज 0, एंड यू विल फाइंड अ पॉइंट. थर्ड टाइप आपकी क्या है, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये यहाँ ना केवल आपकी एक टाइप इंक्रीज हो रही है, अदरवाइज आप वही करेंगे जो आप वेरिफिकेशन में करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन में आप एक पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे जहाँ f प्राइम सी 0 होगा. एंड यू नो वेरी वेल f प्राइम सी 0 implies टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. बस आपने लास्ट में एक लाइन ऐड करनी है कि दिस इज द पॉइंट c, f of c is the point at which tangent is parallel to x axis. Now one by one, बेटा यहाँ 2 रिमार्क हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले. एप्लीकेबिलिटी में आपने चेक करना होगा कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है. यदि रोल्स थ्योरम फेल हो जाएगी इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द 3 कंडीशंस. देखो एप्लीकेबिलिटी शो करने के लिए आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फेल होने के लिए उन तीनों में से कोई एक भी फेल हो गई दैट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल.
आप केवल पर्टिकुलरली उसको मेनली चेक कर लो जहाँ आपको लग रहा है ये फेल हो रही है। अगर आपको दिख रहा है ऑर्डिनेट इक्वल नहीं है या कंटिन्यूस नहीं है या डिफरेंशिएबल नहीं है, यदि उनमें तीनों में से कोई भी एक फेल होगी तो आपकी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकेंड, द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम मे नॉट बी ट्रू फॉर f prime x may be 0 at point AB without satisfying all the three conditions of Rolle's theorem। बेटा क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपके पास देखो एक मैंने कर्व लिखा है, दिस इज अ कर्व, वी आर हेयर बिटवीन A एंड B, यू कैन सी f of A, this is the height f of A and this is height f of B, is f of A is equal to f of B? No, third condition is not satisfied of Rolle's theorem। और इसमें आपके पास, बट यहाँ पर देखो मैं इसमें कन्वर्स लेकर चल रही हूँ। कन्वर्स मीन्स कि इफ देयर इज अ पॉइंट C बिटवीन क्लोज इंटरवल AB, बिटवीन ओपन इंटरवल AB सच दैट कि वहाँ आपका टेंजेंट 0 है, तो आपके पास एक पॉइंट C ऐसा है, ये पॉइंट एक ऐसा है जिस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इफ यू हैव अ पॉइंट सच दैट जिस पर f प्राइम C 0 है, दिस डजंट इम्प्लाई कि उस कर्व के अंदर वो कर्व, वो फंक्शन आपकी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करता होगा। ये जरूरी नहीं है कि यू कैन सी f of A इज नॉट इक्वल टू f of B, एंड ऑल्सो ये A और B के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ आपके दो टेंजेंट बन सकते हैं, आपका फंक्शन ऐसे भी टेंजेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो यहाँ डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो व्हाट डज कन्वर्स सेज, it may happen you have a point C between open interval AB such that f prime C is 0, but it does not imply कि आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती होंगी। So now we are ready with the concept, हमें पूरे concept समझ आ चुके हैं। Now see first type of the sums, applicability of Rolle's theorem। Check the applicability of Rolle's theorem। Question 1, मैंने फंक्शन यहाँ लिया है 10x, 10x और इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 to पाई। 10x आते ही अगर आप अपना देखो कि मैंने आपको रिजल्ट्स में क्या समझाया था, मैंने आपको रिजल्ट्स में बताया था कि 10 फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल रिस्पेक्टिव डोमेन में। नाउ अगर अब हम क्वेश्चंस पर देखें तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा क्लोज इंटरवल है 0 to पाई, यहाँ पर 0 to पाई के बीच में आपके पास π/2 है। fx is not defined at π/2 and which belongs to 0 to पाई closed interval। So आपको डायरेक्टली मिल गया कि fx is not continuous in this closed interval, क्योंकि एक पॉइंट π/2 ऐसा है जिस पर वो not defined है, तो इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। So function is not continuous at 0 to pi closed interval, so Rolle's theorem is not applicable। Second question, function is 1 upon x minus 2, एक रैशनल फंक्शन है और हमने चेक करना है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 के अंदर। आपको बड़े आराम से दिखाई दे रहा है ये फंक्शन 2 पर नॉट डिफाइंड है, मींस एंड पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है। तो हमें क्या चेक करना होता है, कंटिन्यूटी के लिए हम क्लोज इंटरवल चेक करते हैं, क्लोज इंटरवल A to B। तो अगर ये 2 पर नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब पहली कंडीशन नहीं है, fx is not continuous at x is equal to 2 and 2 point is belonging to this interval, so clearly not continuous, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है, so Rolle's theorem is not applicable। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें, फंक्शन इज √5 minus x और इंटरवल है -3 to 6। देखो इस क्वेश्चन के अंदर -3 to 6 आप जब वैल्यू 5 से ऊपर यहाँ पुट करनी शुरू करोगे, ये x जब आपकी वैल्यू 5 से ऊपर लेगा, 5.1, 5.2, 5.3 अप टिल 6, तो आपके रूट में नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपका फंक्शन जब नेगेटिव आ गया तो रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आयोटा बन गया आपके पास में। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5, ऑल x ग्रेटर देन 5 के लिए डिफाइंड नहीं है। सो for all x belonging to open interval 5 to 6 it is not defined, the
फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ओवरऑल क्या है, फंक्शन आपका इस इंटरवल में कंटिन्यूस नहीं है, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। आपको आइडिया होगा कि किस तरह से चेक करना है। हमने एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तभी हम मान लेंगे कि फेल है, लेकिन एप्लीकेबिलिटी शो करने के लिए हमने तीनों को चेक करना है। इसलिए मैंने यहाँ बाकी दो पे मैं गई नहीं, क्योंकि पहले हमारे कंटिन्यूस ही नहीं हो रहा है फंक्शन। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = mod x in -2 to 2। देखो mod x मैंने आपको अपने रिमार्क्स में भी बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह, इट इज कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल में। द डेरिवेटिव ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। ये याद है आपको, इसी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। और 0 पे v शेप, जब भी आप कर्व बनाओगे तो आपके कर्व में आपका कर्व कुछ इस टाइप की शेप लेगा। आप अगर कर्व ड्रॉ करोगे तो आपकी x एक्सिस y एक्सिस और आपका v शेप कर्व ऐसे लेगा। इस पॉइंट पर v पॉइंट जो 0 पॉइंट है, इस पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो डेरिवेटिव ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0। f(x) इज नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। 0 बिलोंग कर रहा है आपके ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ लाई कर रहा है 0 आपका। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सी वन मोर क्वेश्चन, discuss the applicability of Rolle's theorem for the function f(x) = 3 plus x minus 2 raised to the power 2/3 in interval closed interval 1 to 3। बेटा अगर फ्रैक्शन पावर पे पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल है नहीं, हमें यहाँ डायरेक्टली पता नहीं चल रहा कंटिन्यूटी के बारे में। आप क्या करो, एक स्टेप पे और जाओ, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल होता तो हम कहते हैं बीइंग पॉलिनोमियल इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट फ्रैक्शन पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, हमें पता है कि अगर फ्रैक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन में हमारे पास रैशनल फंक्शन बनेगा। डिफरेंशिएशन है तो कांस्टेंट टर्म का 0 होगा और इसका 2/3 x minus 2 raised to the power 2/3 minus 1 means 1/3। तो आपका डिफरेंशिएशन ये आएगा, x minus 2 अपॉन में आ गया। अब आपको ये बहुत आराम से दिखाई दे रहा है कि at 2 f'(x) नॉट डिफाइंड है, मीन्स डिफरेंशिएबल नहीं है at 2। अब 2 हमारे इस इंटरवल में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, 2 हमारे इस इंटरवल का पॉइंट है, तो ओपन इंटरवल में फंक्शन f'(x) इज नॉट डिफाइंड at 2 which is belonging to open interval AB। तो यहाँ पर ये आपका डिफाइंड नहीं है। So function is not differentiable in open interval 1 to 3। So the Rolle's theorem is not applicable। Now here are the question from an NCERT book। Examine the applicability of Rolle's theorem for the function f(x) x² minus 1 in closed interval -1 to 2। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी, पहले हमने एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, देन सेकेंड पार्ट है वो बाद में रीड करते हैं। पहले देखो फंक्शन लिया हमने, ये है। अब यहाँ देखो ये x² - 1 कैसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, यहाँ आप डायरेक्टली कह सकते हो f(x) being a polynomial function is continuous in closed interval and derivable in open interval। ओके, दो कंडीशन तो डायरेक्टली पता चल गई हमें। अब हमें क्या चेक करना है, f(a) and f(b)। f(a) means f(-1) and f(2)। हमने दोनों वैल्यू निकाली, पहली आई 0 और दूसरी आई 3, तो यहाँ हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। f(a) is not equal to f(b)। This implies third condition of Rolle's theorem is not satisfied, hence Rolle's theorem is not applicable to given function in closed interval। तो पहला हम चेक कर चुके हैं कि हमारी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, अभी तक मैंने सारे एग्जांपल लिए जहाँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अगले मॉड्यूल में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी जहाँ एप्लीकेबल है, क्योंकि वेरीफाई जब हम करेंगे, वेरिफिकेशन जहाँ होगा वहाँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब हम इसके आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन। कन्वर्स, देखो हम यहाँ पर कन्वर्स पर आ गए हैं। कन्वर्स के लिए हमने क्या चेक करना है कि कन्वर्स मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है क्या इस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 2 के बीच में, जहां हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो।
कन्वर्स मीन्स हम फिर सबसे पहले हम वापस चलते हैं, बैक साइड की एफ प्राइम एक्स निकालते हैं। एफ प्राइम एक्स निकाला 2x। अब मुझे एक पॉइंट निकालना है c, जहाँ मेरा एफ प्राइम सी 0 हो। तो मैंने क्या किया, इसको c रखा और एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0 पुट किया। एफ प्राइम सी हुआ 2c, 2c को अगर 0 रख रही हूँ तो c की वैल्यू आई 0। 0 0 वो पॉइंट है, c पॉइंट है जिस पर मेरा एफ प्राइम एक्स 0 है। तो मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया -1 to 2 के बीच में 0, जिस पर मेरा एफ प्राइम सी 0 है। इट मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसमें मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बिकॉज 0 इज बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 to 2। बेटा यहाँ -1 है क्योंकि क्वेश्चन है -1 गिवन है, -1 to 2। बट आपको याद है मैंने आपको अपनी स्लाइड में बताया था, जहाँ मैं रिमार्क्स डिस्कस कर रही थी आपसे, रिमार्क्स मैंने डिस्कस किए थे आपसे कि इफ इट हैपन्स आपके पास ओपन इंटरवल में ऐसा पॉइंट है जहां आपके पास टेंजेंट है, बट इट डज नॉट मीन ऑल द 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड हियर। जैसे आप देख सकते थे यहाँ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, इस पॉइंट पे डेरिवेबल भी नहीं था। तो नाउ सी कि यहाँ हमारे पास existence of c is equal to 0 does not implies that all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. So converse of Rolle's theorem may not be satisfied. So I'm sure तुम्हें converse अच्छे से समझ आ गया। What can you say about the converse? कि converse of Rolle's theorem may not be satisfied. Now move on to question number 2. This is again from NCERT. Question says f is a function from -5 to 5 closed interval से real number पर is differentiable function. ये function differentiable है and f prime x is not 0 anywhere. इसका मतलब differentiable है तो वो continuous है, but function is not 0 anywhere. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है हमारी। बट एफ प्राइम एक्स इज नॉट 0 का मतलब कि वहाँ ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ आपका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब देन प्रूव दैट, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ आया है। क्वेश्चन क्या गिवन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ प्राइम एक्स इज नॉट 0 एनीवेयर। बेटा डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस है, बट इट इज नॉट 0 एनीवेयर, मींस देयर इज नो पॉइंट लाइंग इन द ओपन इंटरवल -5 to 5 where your tangent is parallel to x axis. Then prove that f of -5 is not equal to f of 5. तो बेटा देखो, अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती तो आपका f of -5 f of 5 के इक्वल होता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हमें कह रहा है कि f प्राइम एक्स इज नॉट 0, तो ये एक मैंने ओवरव्यू आपको समझाया, मोटी मोटी बात। बट अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं, हम रिवर्स चलते हैं कि f of -5 हमारा f of 5 के इक्वल है। इसका मतलब अगर ये इक्वल होता है तो मेरी ऑल 3 कंडीशंस सेटिस्फाइड है, डिफरेंशिएबल है, वो कंटिन्यूअस है और वो इक्वल भी है। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम क्या करते हैं, हेंस देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन रियल नंबर c इन -5 to 5 वेयर f प्राइम c इज 0। अब ये बात तो हमारी कॉन्ट्रेरी नहीं हो गई हमारे गिवन के। गिवन क्या है कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है f प्राइम x में जहां पर वो 0 हो। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। This line is important to write here. Our supposition is wrong. Hence, f of -5 is not equal to f of 5. Now see next question. Examine if Rolle's theorem is applicable to the function fx is equal to, this is greatest integer x, for x belonging to closed interval 5 to 9. Examine if Rolle's theorem is applicable. क्या Rolle's theorem applicable है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, जबकि आपका इंटरवल 5 to 9 क्लोज्ड इंटरवल है। फिर दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का, व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स ऑफ Rolle's theorem।
तो सबसे पहले बेटा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आपको पता क्लोज इंटरवल 5 to 9 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होता, इंटीग्रल पॉइंट पे वहां ब्रेक आता है और नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। तो इस इंटरवल में आपका 6, 7, 8 पॉइंट भी है और जहां वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आपकी पहले ही कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड नहीं है, मींस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9, so रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। क्यों ट्रू नहीं है बेटा? जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि आपके पास यहाँ तक आए, फिर आप 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, इस तरह का ग्राफ आपको एक स्टेप फंक्शन मिलता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। आप देख सकते हो अगर ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है एंड 3 है, सो ऑन। तो आपके इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक है, फंक्शन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहला वो क्लियर हो गया। अब आप देखो जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, जितने भी 1 से 2 के बीच नॉन इंटीग्रल पॉइंट है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.999 तक सारे नॉन इंटीग्रल पॉइंट में आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है 1, तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, f(x) आपका क्या आएगा 1 to 2 के बीच में 1। अब उसको डिफरेंशिएशन निकालोगे f'(x), वो क्या आएगा 0, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0। अगर आप 2 to 3 के बीच में निकालोगे तो सभी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे डिफरेंशिएशन 0 अगेन, मींस ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर आपका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। सो अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यू में इतनी सारी वैल्यूज पे 0 है, वैसे भी आपको ग्राफ से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास टेंजेंट यूनिक नहीं है, बट एक पॉइंट है कि ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर आपका f'(x) 0 है। सो रोल्स थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। सो आई एम श्योर ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा। जो एनसीईआरटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इसके बाकी टाइप्स के लिए मेरा कंटिन्यूएशन मॉड्यूल है, आप उसमें उसको देखेंगे, बाकी टाइप मैं वहाँ डिस्कस कर रही हूँ। नाउ thank you for your patience and viewing it carefully. Thank you so much.